हेलो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम। कैसे? अच्छे ना? पेपर ध्यान से लिख रहे हैं ना? पेपर आराम से ध्यान से लिखना। आपको भेजने की जल्दबाजी नहीं है, अभी दिन है आपके पास, राइट? यस्टरडे आई हैव जस्ट टेकन यूनिट नंबर 4 of your English subject and now I am just sending you unit number 5. बराबर? So take your ball pen, notebook, pencil, whatever the accessories you need और आराम से बैठकर अच्छी तरह से नोट करो। और हाँ, एक्टिविटी यूनिट नंबर 4 का होमवर्क किया ना? देखो, हर चीज़ 5 टाइम लिखो, नोट कंप्लीट करो और अच्छी तरह से उसको पढ़ो, याद रखो। ओके? तो अभी हम यूनिट नंबर 5 ले रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 5, द टाइगर्स क्लॉ। क्लॉ यानी पंजा। In this lesson, activity number 1, imagine the following situation, write down that you would do. What you would do? Shares your points with your teachers and classmates. जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपके पास अचानक कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है, तब आप दिमाग को काबू में रखकर क्या कर सकते हो? What you will do? That you have to mention here. First, you are sitting in the garden on a bench watching the children playing. You look up and this is what you see. आप अचानक एक सांप या तो नाग दिख रहे हैं, उसके बारे में लिखना है, बराबर? Second, you are bending and look under the bed helping your grandfather find his sandal. This is what jump over your hand. अरे आपके हाथ पे टच करके क्या कूद के गया? तब आपके जो स्थिति होती है वो आपको लिखना है। 3, you are washing your hands, suddenly a large number of the cockroaches came out of the drain. गटर में से अचानक बहुत से कॉकरोच निकल आते हैं, तो आप क्या करेंगे? Number 4, you are alone at home. You hear the door crack and see him. Who him? Thieves. When you will look a snake and children are playing outside here and there, what you will do? When I will see a snake, I will scream loudly and alert the children who are playing in the park. बच्चे को तुरंत मैं क्या करूँगा? उनको चौकन्ना कर दूँगा, ए यहाँ सांप है, यहाँ मत आना, है ना? इस तरह से कर सकते हो। लकड़ी से उसको दूर भगा सकते हो, या तो वॉचमैन किसको भी बुला सकते हो, प्यून को बुला सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। ये मैंने मेरे विचार लिखे, आप भी अलग से लिख सकते हो। सेकंड, you are bending and looking under the bed helping your grandfather find his sandal. This is what you jump over you. When I see a rat, I will shout, oh, it's rat. Then I will hit a stick here and there so the rat would run outside. Then I will put a mouse trap. रेट को पकड़ने के लिए फिर पिंजरा लगा देंगे। 3, you are washing your hands, suddenly a large number of cockroaches come out of the drain.
Suddenly I will take a bucket and cloth, collect them and threw them out. ये इसमें एक मिस्टेक है, THROW थ्रो आता है, एक अक्षर लिखना THROU लिख दिया है, THROW आएगा, ये मिस्टेक सुधार लेने का, बराबर। और आई विल स्प्रे कॉकरोच किलर, सीधी बात है। नंबर 4, यू आर एलोन एट होम, यू हियर द डोर क्रैक एंड सी हिम। When I will see the thief, I will not afraid of him. Quickly I will dial and call the police. I will shout loudly that there is a thief. Spelling mistake है, that THAT आता है, THET लिखा है, स्पेलिंग सुधार लेना। that there is a thief आप ऐसा लिख सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आप सुधार लेने का, बराबर। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, द टाइगर्स क्लॉ पार्ट 1। नाउ दिस इज द लेसन, what you at least you have to read it, 1 or 2 I will read with you and then you read it your home carefully. I opened my eyes and saw at the door a tiger pushing himself in. उसने देखा दरवाज़ा, उसकी आंखें खुली तब कि दरवाजे में से टाइगर अपने आप को अंदर आता देखा। It was a muddled movement. मुडेल्ड मूवमेंट का मतलब क्या? अवाचक क्षण, अवाक, क्या करे क्या न करे उसका सूझ भी नहीं होता है, ऐसी क्षण होती है, उसको मुडेल्ड बोलते हैं। Muddled moment for me, not being sure whether the dream was or continuing or whether I was awake. लेकिन मैं जगा हुआ था, ये सपना था क्या था कुछ पता नहीं था। Yet I at first thought it was my friend the station master who was coming in. उसे ऐसे लगा कि शायद मेरा स्टेशन मास्टर जो उसका फ्रेंड था वो आ रहा है। But my dream had fully prepared my mind. I saw the thing clearly against the starlit sky. लेकिन जब उसने आकाश के अंदर तारे टिमटिमाते हुए देखा, and tail is wagging, rolling, and above all the terrible eyes gleaming through the dark. और इतने में आकाश में उसने टिमटिमाते हुए तारे देखे और उसकी पूंछ हिल रही थी, वो उसका आवाज़ आ रहा था ग्रोलिंग, एंड इसके ऊपर उसकी डेंजर आंखें जो चमक रही थी अंधेरे में, वो उसने देखा। आई अंडरस्टूड द फर्टिलाइजर कंपनी वुड हैव टू मैनेज विदाउट माई लेक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग डे। कि भाई फर्टिलाइज़र कंपनी ने मेरा तो अब इंतज़ाम कर दिया, अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए तो वो मेरे बिगर ही लेक्चर का इंतज़ाम कर दिया है। मतलब कि उसको यकीन था कि अब तो मेरे को टाइगर खा जाएगा। द टाइगर हिमसेल्फ वॉज रादर स्टार्टल्ड बाय द नॉइज ऑफ द चेयर एंड स्टूड हेसिटेटिंग। इतने में जो राइटर है वो टेबल खिसकाता है, तो उसकी आवाज़ थोड़ी नहीं लगती है, इसके लिए वो टाइगर वहाँ रेटल हो जाता है, उसको नॉइज़ को देख के वो वहाँ खड़ा हो जाता है, वो सोच में पड़ गए ये क्या है। ही सॉ मी क्वाइट क्लियरली इन माई कॉर्नर। उसने लेखक को कोने में देखा, एंड ही सीम टू बी टेलिंग हिमसेल्फ माई डिनर इज़ रेडी बट लेट मी फर्स्ट नो व्हाट दिस क्लैटरिंग नॉइज इज़ अबाउट। वो जो आवाज़ आया था ना चेयर और टेबल का, तो उसने इसको कोने में देखा, तो अपने आप को जैसे कह रहा था, कौन? टाइगर अपने आप को क्या कह रहा था कि मेरा डिनर तो रेडी है, लेकिन ये आवाज़ कैसे आया उसका पहले मुझे देखने दो। ऐसा करके वो सोचने लगा।
Somehow, the wild animals are less afraid of being that they are of piece of furniture like the chairs and tables. ज़्यादा करके क्या होता है, आपको आपने आगे पुराने जो जंगल के पिक्चर है उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक बच्चा उसके पीछे एक हाइना पड़ा हुआ होता है, तो वो अपने सर पे कुछ लकड़ी का इतना बड़ा सा कुछ अलग सा आकार बना के खड़ा हो जाता है, तो वो जो भागते आ रहा था वो अचानक थम जाता है और देखते कि ये क्या है, ये क्या है, कुछ उसके समझ में नहीं आता है। बराबर उसी तरह जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो इंसान को तो नहीं डरते उससे, लेकिन कुछ अलग तरह का आजू बाजू होता है तो उसके आवाज़ से वो समझ जाते कि ये क्या है। I have seen circus man managing the whole menagerie with nothing more than a chair, लेकिन वो जो उसने देखा है कि भाई सर्कस के अंदर जो उसका रिंग मास्टर होता है, हाथ में कुर्सी से ही वो सब करता रहता है और उसका कंट्रोल करता रहता है। God give us such a recollection in order to save us at the critical moments, और भगवान ने ऐसे कुछ उनको दिमाग में लिमिटेशन दिए जो ऐसे परिस्थिति में काम लाते हैं। बराबर। एंड एज द टाइगर स्टूड ऑब्जर्विंग मी एंड वॉचिंग द चेयर, आई पुट आउट माई हैंड्स एंड विथ डिस्प्रेट। तो टाइगर इसको देख रहा था, यानी लेखक को देख रहा था और कुर्सियों को देख रहा था, टेबल को देख रहा था। ऐसी स्थिति इनकी थी, उसमें इसने अपना हाथ बाहर निकाल दिया और स्टैंड ड्यू द टेबल टुवर्ड्स मी, और उसने हाथ बाहर निकाला और वो जो टेबल था ना अपने आप की तरफ खींच लिया। एंड वो जो टूल था छोटा टेबल वो भी उस अपने आप की तरफ खींच लिया। आई सेट विथ माई बैक टू द कॉर्नर, द टेबल वैग्ड इन नाइसली विथ द कॉर्नर, आई सेट अंडर इट एंड द स्टूल वेल्ड अप अनदर साइड, while I dragged the table down, a lot of things fell off it. A table lamp, a long knife, and pins. From my shelter, I peeped at the tiger who was also watching me. वो अपने आप को इसी तरह दुबक के अंदर बैठ गया है और आजू बाजू सब चीज़ उसको लगा दी है, टेबल लगा दिया है, ऊपर भी लगा दिया है, आजू बाजू लगा दिया है और सब अपने थोड़ा सेफ्टी उसने कर लिया है। बराबर। उसके आजू बाजू और क्या चीज़ थी कि टेबल लैम्प था, एक बड़ा सा चाकू था, पेन थी। वो अपने आप का जो उसको आशियाना मिल गया, वो वहाँ से टाइगर को भी देख रहा था और टाइगर भी उसको देख रहा था। एविडेंटली ही डिडंट लाइक दिस मील टू बी सो कम्प्लीटली शट आउट ऑफ साइट, सो ही courteously advanced step or two, making a sort of rumbling noise in his throat. वो उसका गुर्राने की आवाज़ निकाल कर वो 2 स्टेप आगे आता है। Which seems the shake of the little station mouse. My end was nearing. I really pitied the woman whose lot it was to have बिकम माई वाइफ, कि भाई मेरा एंड तो अभी नक्की हो गया। वो अपनी जो मिसिस थी उसको दया के भाव से याद करता है। आई हेल्ड अप द चेयर लाइक अ शील्ड एंड फ्लॉरिस्ड इट एंड द टाइगर हेसिटेटेड एंड फेल बैक स्टेप और 2। तो इसने वापस उसको अपने पास रख दिया, टेबल को थोड़ा फ्लरिश कर दिया और ऐसा देखकर जो टाइगर है वो थोड़ा सहम जाता है
और 2 स्टेप और पीछे चला जाता है. Now once again we spent some time watching for the other's movement. I held my breath and waited. The tiger stood there fiercely waving its tail, which sometimes struck the side walls and sent forth a thud. He suddenly crouched down with the taking his eyes off me. वो अचानक क्रोच करता है, लेकिन उसकी आंखें बराबर शिकार पर ही लगी हुई थी, यानी लेखक के ऊपर ही थी. वो फ्लोर, उसका जो लकड़ी का फ्लोर होता है उसको वो खरोच रहा था अपने नाखूनों से. ही शार्पनिंग देम फॉर मी. और वो क्या सोचता है कि देखो ये मुझे मारने के लिए अपने नख शार्प कर रहा है. आई टोल्ड हिमसेल्फ द लिटिल शैक हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ स्मेल ऑफ जू. और उसको उसकी गंध आ रही थी. इट मेड वो उससे वो बिल्कुल बेचारा बीमार हो जाता था. द टाइगर कैप स्क्रैचिंग द फ्लोर विथ हिज फोर्ट. वो क्या करता है कि अपने हाथ के पंजों से वो फ्लोर को उखेड़ रहा है, उसको खुरेच रहा है. इट वॉज द मोस्ट हिडियस साउंड. और वो इतना अगली साउंड उसको लगता है कि अभी तो मुझे मार ही डालेगा. एंड यू कुड थिंक ऑफ, आप इसके बारे में सोचो वो कितना बुरा मुझे लगता है. Now activity number 3. Match the words in column with their meaning in column B. देखो ए के अंदर क्या क्या है, मुडेल्ड है, स्टारलिट है, वैगिंग, ग्लिमिंग, क्लैटरिंग, मेनाग्रीज, रम्बलिंग, क्लो, हेडियस. और उसके यहाँ डिस्क्रिप्शन दी है. तो पहला लेते हैं मुडेल. मुडेल का मतलब क्या है? ऐसी क्षण, कंफ्यूज क्षण जो होती है ना, तो कंफ्यूज और बीविल्डेड, उसका मतलब ये होता है. अभी देखो ये जो मैच है ये मैंने आप लोग के लिए करके रखा है, तो मैं अभी आपको दे रहा हूँ. ये एक्टिविटी नंबर 3 है. उसके जो वर्ड्स है उसके मीनिंग कहाँ होते हैं, ऑलरेडी आई हैव जॉइंट इट, सो दिस इज़ फॉर यू, यू जस्ट डू इट. हियर नंबर 1 मूडेड. मूडेल्स का मतलब यहाँ आया कंफ्यूज और बी वाइल्डर्ड. सेकंड स्टारलिट. स्टारलिट मीन्स के लुक हियर, वेट्स गो लीट बाय स्टार्स. नंबर 3 जो है वो. सो you already do this and write down in your notebook. You have a textbook too, so you can easily write it down. Okay, now activity number 4. Activity number 4 has some question answer. Repeat the paragraph. वो पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चन आंसर निकाले हैं. वो है फर्स्ट, ऑलरेडी मैंने आंसर इसमें लिखे ही है और आपको मैं दे भी रहा हूँ. वॉट वर्ड हैज़ द ऑथर यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट. वो जो मूवमेंट थी जो अवाचक हो गया था, तो वो कौन सी क्षण थी, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया था. तो द ऑथर हैज़ यूज्ड मॉडल्ड वर्ड टू डिस्क्राइब दैट मूवमेंट. नंबर 2, why has he used this describing word or adjectives? The author has used adjective or describing word because it was not sure that it was dream or real moment. In this confusion he used the adjective words. क्योंकि he was not sure because he was in sleep, and when he just wake up he can't feel is it true or false. It's true that tiger is here, and he also thinking that his friend station master is coming inside. So वो हाफ ड्रीम था और हाफ फैक्ट था.
इसके लिए उसने ये वर्ड्स यूज़ किया. नंबर 3, which two statements suggest that the narrator is sure the tiger is going to kill him? These two statements suggest that the tiger is going to kill him. Number 1, the author is telling himself, my dinner is there ready, but that is a clattering noise is about. Second, the tiger suddenly crouched down his claw and he kept scratching the floor with his forepaws. यहाँ एक गलती है, आपको सुधार लेना. विथ टू स्टेटमेंट सजेस्ट के अंदर देखो यहाँ लिखा है नंबर 1 में द ऑथर इज टेलिंग हिमसेल्फ नहीं आता है, इसमें आएगा द टाइगर इज टेलिंग हिमसेल्फ माई डिनर इज रेडी. बट वॉट इज़ द क्लैटरिंग नॉइज, क्योंकि वो टेबल कुर्सी का जो आवाज़ आया था ना, इसकी वजह से वो वहाँ ठहर जाता है. तो द ऑथर की जगह पे लिखना, ऑथर की जगह पे टाइगर. Number 4, how was the tiger approaching his prey? Tiger was approaching his prey by wagging his tail and growling. वो बिल्कुल आराम से गुर्राता हुआ और अपनी पूंछ हिलाता हुआ वो शिकार के पास आ रहा था. Now रिफर द पैराग्राफ नंबर 2 के 2-3 क्वेश्चन आंसर है, वो हम कर लेते हैं. गॉड गिव अस सच रिकॉलेक्शन इन ऑर्डर टू सेव इट एट अ क्रिटिकल मोमेंट. तो ऑलरेडी अपने पास बने हुए हैं. आप अगर आपके पास जो ये डाइजेस्ट होगी तो उसके अंदर दिए ही है, आप उसमें से भी देख सकते हो. बराबर. तो ऑलरेडी मैंने यहाँ जो उसमें लिखा है वो आपको ये मैं दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको. तो उसका आंसर है विद द अबाउ गिवन सेंटेंस द नरेटर रिफर्स टू द रिकलेक्शन ऑफ द circus which he has seen. The remembers to have seen circus man managing a whole menagerie with just a chair, because from his recollection he gets the idea that he can also manage the tiger with the chair in that room. Number 2, I really pitied the woman whose lot of it was to have become my wife. Who is the woman to be pitied? The narrator's own wife is a woman to be pitied. B, why is she to be pitied? She was to be pitied because in the encounter the tiger there is no hope left for the writer to survive any longer. उसके लिए कोई चांस नहीं था बचने का. इसके लिए वो ऐसा सोचता है कि मेरी बीबी बेचारी उसने मेरे से शादी की तो उसके ऊपर उसको दया आ रही थी, क्योंकि उसका बचने का चांस नहीं था. नाउ नंबर 3, how did the narrator use the furniture to his advantage? The narrator drew the table and the stool towards him. He sat with his back to the corner and got the table wigged in nicely with the corner. He sat under it and the stool walled up on other side. Thus the narrator used the furniture to his advantage.
अभी रिफर टू पैराग्राफ नंबर 3, उसमें लिखा है एक, आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वेटेड, दिस लाइन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ, कौन सी सेंस क्रिएट होती है? सस्पेंस, बराबर। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वेटेड, दिस लाइन क्रिएट्स ए सेंस ऑफ सस्पेंस, कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा बस। सेकंड, comment on the narrator's feeling when he says that it was the most hideous sound you could think of, justified the statement। क्योंकि वो मौत उसके नज़दीक थी, वो तो सोच ही रहा था कि मैं अभी तो गया, एंड द टाइगर वॉज क्वाइट क्लोज टू द नरेटर, उसके बिल्कुल पास में था। ऑफकोर्स द नरेटर हिडन बिहाइंड द टेबल वॉज सेफ। द टाइगर स्टार्टेड स्क्रॉचिंग द फ्लोर, द राइटर कलेक्टेड the impression that the sound of the tiger scratching the floor with his forepaw was the most hideous, most ugly, most dangerous sound। वो ऐसा वो मानता था। So we are taking up to here। ये जो वीडियो है वो यहाँ तक बनाया है। अभी नेक्स्ट टाइम अपन लेंगे एक्टिविटी नंबर 5 से। लेसन रीड करना है और बाकी की एक्टिविटीज़ है दैट वी विल डू। ओके, आपको होमवर्क में 5 टाइम लिखना है। राइट, बाय, सी यू।